Hello students, in the previous lecture we had an overview of all the orders of the CPC, and I tried to make it easier for you people to memorize all the orders of the CPC. So it is not really tough job to memorize all the orders of the CPC. There are only 51 orders and all the orders are actually placed in a very systematic way. So the exact procedure that is being followed in the courts is given under the orders of the CPC. So it is not at all tough to memorize all the orders of the CPC. So if you have not memorized all the orders of the CPC yet, then please do it as soon as possible. The major reason for memorizing all the orders by heart is that firstly, there are instances when questions are being asked directly from the order number of CPC. Secondly, if you have memorized all the order numbers of the CPC, then you will have an idea about the bare act of the CPC. You will actually have an idea as to which provision is placed under which order of the CPC. So this will obviously give you a confidence, much needed confidence to understand the CPC. Fine. So जितना जल्दी हो सके CPC के orders को आप याद करने की कोशिश करो. हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन अगर आप 2-3 दिन लगातार CPC के ऑर्डर्स को थोड़ा टाइम दे रहे हो, थोड़ा याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो 51 ऑर्डर्स को याद करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है. बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से दिए हुए हैं और आपको उसी सिस्टमेटिक तरीके से उनको याद करना है. फाइन. कुछ ट्रिक्स भी मैंने बताई हैं आप लोगों को, उन ट्रिक्स को भी आप अप्लाई करके उन ऑर्डर्स को याद कर सकते हो. फाइन. Then I also discussed with you in the previous lecture from section 1 to section 8 of the CPC. From these sections, section 2 is extremely important for the purpose of your examination. Although all the sections of CPC, almost 90% of the sections of the CPC are actually important for the purpose of your examination, but then section 2, which is a definitional section in almost all the acts, is extremely important for the purpose of your examination, because questions are actually being asked from section 2 of CPC as well. Fine. So try to memorize all these sections and the content of section and the keywords of these sections by heart. Whenever you stop watching this class, you or whenever you have covered the lecture, then please sorry, I had to pause for a second. So once you are done with the lecture, then please read those provisions from the bare act on your own. Fine. So just watching the lectures would not work until you have a look at the bare act on your own. फाइन. सो जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो, आप एक बार उन सारे प्रोविजंस को थोड़ा सा टाइम देके खुद से भी पढ़े, चाहे वो उसमें हाफ एन आवर लगे या 1 घंटा लगे. लेक्चर देखने के बाद में आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना आपको अदरवाइज़ अगर आप शुरू से खुद से ही कर रहे हो. फाइन. सो लेक्चर देख, ऐसा सिर्फ लेक्चर के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना है. अगर आपने लेक्चर देखा है तो उसके बाद में आपको वो चीज़ खुद से भी एक बार पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको वो चीज़ें याद होंगी. Fine. So let's proceed with section 9 of the CPC. In this lecture I will try to cover section 9 to section 21A of the Code of Civil Procedure. CPC में section 9 to 21A सारे ही sections extremely important हैं, and you cannot afford skipping even a single section from these provisions. Fine. So each and every section of today's lecture is extremely important for the purpose of your examination, and you have to cover all these provisions if you really want to crack the specifically the prelims of any judicial services examination. Fine. So questions इनसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं देखा गया है आज तक जिसमें सेक्शन 9 टू सेक्शन 21A कभी कोई क्वेश्चन पूछा ना जाए. ठीक है. तो आपको क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 भी इन प्रोविजंस में से मिल सकते हैं, चांसेस हैं. फाइन. सो लेट्स प्रोसीड. So this is part 1 of the Code of Civil Procedure.
part 1 of CPC deals with section 9 to section 35B. फाइन. सो सेक्शन 9 टू सेक्शन 35B जो है वो CPC में पार्ट 1 का पार्ट है, और ये सारे ही सेक्शंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. जो जो सेक्शन 9 टू सेक्शन 35B है वो बेसिकली सूट्स के बारे में बात करता है. कोर्ट में उन सूट की प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करता है, प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में बात करता है, ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स के बारे में बात करता है, कोस्ट्स के बारे में बात करता है. फाइन. सो ये जो जनरल प्रोविजंस हैं जो कोर्ट में जो होते हैं वो पार्ट 1 का हिस्सा है CPC में. नाउ सेक्शन 9 talks about jurisdiction of the courts in CPC. So jurisdiction of any court is basically the power of the court to proceed or to hear a particular suit and to determine the decision or to determine the cause or a matter in the CPC. Fine. So exactly what courts have the powers to decide the suits in the CPC. These provisions, this provision relating to the power of the court to try a civil suit is given under section 9 of the CPC. Section 9 of CPC is also known as a gateway to the code of civil procedure. इसके थ्रू ही आप CPC में एंटर करते हो, क्योंकि जब तक कोर्ट के पास पावर ही नहीं होगी उस सूट को डिसाइड करने की, तब तक आप जो है उस कोर्ट में नहीं जा सकते हो उस सूट को लेके. फाइन. सो सेक्शन 9 इज ऑल्सो नॉन टू ब्रिंग फोर्थ द प्रिंसिपल ऑफ उबी यूस इबी रेमेडियम. उबी यूस इबी रेमेडियम का मतलब क्या है? व्हेनेवर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. जहाँ पे भी अधिकार होगा वहाँ पे रेमेडी आपको ज़रूर मिलेगी. फाइन. सो जहाँ पे भी आपका कोई राइट है और अगर वो राइट वायलेट होता है तो उस राइट के वायलेशन को अंडू करने के लिए या फिर उसकी रेमेडी लेने के लिए आपके पास पावर ज़रूर होगी. फाइन. सो दिस पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द CPC, दैट इज सेक्शन 9 ऑफ CPC, talks about the doctrine of ubi ius ibi remedium. Whenever there is a right there is a remedy. Fine. So it specifically says that that every court shall have the right to decide the suit unless expressly or impliedly barred. So let's read as to what is given under section 9. Section 9 says courts to try all civil suits unless barred. So court जो है सारे civil suits को try कर सकती है unless barred. जब तक barred नहीं है, जब तक कोई बार नहीं है किसी तरह का, तब तक कोर्ट जो है वो हर तरह के सिविल सूट को ट्राई कर सकती है. सो द कोर्ट शैल subject to the provisions herein contained have jurisdiction. So this provision basically gives a power to the court. The courts shall have jurisdiction. कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कोर्ट की jurisdiction को डिनाई कर पाए. हर एक कोर्ट के पास ये jurisdiction है. कैसी jurisdiction? To try all suits of a civil nature. सिविल नेचर के सारे सूट्स को ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन कोर्ट के पास है, एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड. सो जनरल पावर क्या कहती है कोर्ट की कि उसके पास सारी की सारी पावर्स हैं, उसके पास जुरिस्डिक्शन है कि वो सिविल सूट के सारे सिविल नेचर के सारे सूट्स को ट्राई कर सकती है. लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या कहता है कि अगर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड है तो सिर्फ उस केस में जो सिविल कोर्ट है वो उस सूट को ट्राई नहीं कर सकती. सिर्फ एक ही बार है कि या तो वो एक्सप्रेसली या फिर वो इम्प्लाइडली बार्ड हो.
अगर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड नहीं है तो हर एक कोर्ट के पास पावर है कि वो सिविल नेचर के सूट को ट्राई कर सकते. इट विल हैव द jurisdiction टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर. देन a question arises as to exactly what sort of suits are to be tried by the court. The suit of any civil nature can be tried by the court. Civil suit की बात नहीं कर रहा बल्कि ये सिविल नेचर के सूट की बात कर रहा है. सिविल नेचर का जो सूट है वो सिविल सूट से एक वाइडर टर्म है. इट इज ऑल्सो सेड दैट एनी केस विच इज नॉट क्रिमिनल इज ऑफ सिविल नेचर. फाइन. सो सिविल नेचर के हर एक सूट को ट्राई करने की कोर्ट के पास पावर है, एक्सेप्ट सिर्फ एक सिचुएशन में नहीं है. वो क्या है? या तो वो एक्सप्रेसली बार्ड हो या फिर वो इम्प्लाइडली बार्ड हो. ठीक है, तो वो जो बार है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है या फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है. या तो स्टैट्यूट में स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली दे रखा हो कि यहाँ पे कोर्ट जो है इस तरह के सूट्स को डिसाइड नहीं कर सकती है, या फिर उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट को कंस्ट्रक्ट करके हमें पता चलता है कि यहाँ पे सिविल कोर्ट की जो है इम्प्लाइड जुरिस्डिक्शन बार्ड है. फाइन. देन एक्सप्लेनेशन 1 सेज अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी. कैसे सूट की बात कर रहा है? जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड. सो अगर किसी सूट में राइट टू प्रॉपर्टी या ऑफिस के ऊपर कोई डिस्प्यूट है और वो एक सिविल नेचर का सूट है. फाइन. सो अगर कोई भी सूट में राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस की बात होती है तो वो एक सिविल नेचर का सूट ही माना जाएगा, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट सच राइट में डिपेंड एंटायरली ऑन द डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज टू रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज. देखो यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है कि अगर किसी केस में प्योरली रिलीजियस मैटर है, प्योरली रिलीजियस इशू है, तो वो सिविल सूट नहीं माना जाएगा. लेकिन एक्सप्लेनेशन 1 किस चीज के बारे में बात कर रही है? एक्सप्लेनेशन 1 बात कर रही है राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू ऑफिस. अगर किसी सूट में एक इशू है, बेशक से वो राइट जो है राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस वो बेशक से पूरी तरह से एंटायरली पूरी तरह से रिलीजियस राइट्स या सेरेमनीज पे निर्भर करता हो, फिर भी वो सिविल नेचर का सूट ही माना जाएगा. फाइन. सो ये प्योरली रिलीजियस सूट की बात नहीं कर रहा, प्योरली रिलीजियस राइट की बात नहीं कर रहा है, बल्कि राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू ऑफिस की बात कर रहा है. ठीक है. सो उस रिलीजियस राइट या सेरेमनी के ऊपर बेशक से ये राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस निर्भर करता हो, अगर कहीं पे भी सिविल कोर्ट के पास राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस का क्वेश्चन आएगा तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर ही माना जाएगा, बेशक से उसका जो डिसीजन है वो पूरी तरह से रिलीजियस राइट्स या सेरेमनीज पे निर्भर करता हो. फाइन. सो यहाँ पे जो मेन बात ध्यान रखने की है वो 2 ही चीजें हैं कि ये रिलीजियस राइट या सेरेमनी के रिगार्डिंग कब कोई सूट सिविल नेचर का सूट हो जाएगा, जब वो रिलीजियस राइट या सेरेमनी किसी राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस के बारे में बात करता हो. अगर राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू ऑफिस के अलावा कोई और इशू है जो प्योरली रिलीजियस राइट या सेरेमनी पे डिपेंडेंट है तो वो सिविल नेचर का सूट नहीं होगा. लेकिन अगर उस रिलीजियस या सेरेमोनियल राइट में कहीं पे भी राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस की बात आएगी तो वो अपने आप एक सिविल नेचर का सूट बन जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, कई बार जो हम गलती करते हैं उसमें हमें लगता है कि अगर एंटायरली रिलीजियस राइट या सेरेमनी के ऊपर निर्भर है तो वो कहीं ना कहीं सिविल नेचर का सूट नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे मेजर ध्यान रखने की क्या बात है कि बेशक से ये सूट एंटायरली रिलीजियस राइट या एंटायरली रिलीजियस सेरेमनी पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन अगर इसमें राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस की बात आएगी तो वो
सिविल नेचर का सूट बन जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज यहाँ पे रिलीजियस राइट या सेरेमनी की नहीं है, बल्कि यहाँ पे मेन जो मुद्दा है वो है राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू ऑफिस, चाहे वो बेशक से पूरी तरह से किसी रिलीजियस राइट या सेरेमनी पे निर्भर करता हो। अगर राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू ऑफिस की बात आ गई तो वो अपने आप सीधा का सीधा जो है सिविल नेचर का सूट बन जाएगा। इसमें ये जो सेक्शन है इसमें से सीधे सीधे 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो यही है कि सेक्शन 9 में एग्जैक्टली है क्या, ज्यूरिसडिक्शन पावर कौन सा सेक्शन देता है सीपीसी में किसी भी कोर्ट को सिविल सूट को ट्राई करने की, तो सेक्शन 9 है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस तरह से जो सिविल कोर्ट है उसकी ज्यूरिसडिक्शन को बार किया जा सकता है, तो इम्प्लाइड या एक्सप्रेस बार जो है वो हो सकता है। तीसरा, सिविल नेचर के सूट्स को ट्राई करने की पावर हर एक सिविल कोर्ट के पास है, अनटिल और अनलेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई जो क्वेश्चन है वो एंटायरली रिलीजियस राइट और सेरेमनी पे डिपेंडेंट है, लेकिन वो क्वेश्चन किस बारे में है, राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस के बारे में है, फाइन, तो वहां पे भी उसको जो है उस सूट को जो है सिविल नेचर का सूट ही माना जाएगा, बेशक से वो पूरी तरह से रिलीजियस राइट या सेरेमनी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस के अलावा कोई और इशू आता है जो प्योरली रिलीजियस राइट या प्योरली रिलीजियस सेरेमनी पे डिपेंडेंट है, तो वहां पे जो है उसको सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं माना जाएगा। लेकिन जहां भी राइट टू प्रॉपर्टी और ऑफिस की बात आ गई, वो सीधा सीधा जो केस है वो सिविल नेचर का बन जाएगा। नाउ एक्सप्लेनेशन 2 says for the purposes of this section it is immaterial whether or not any fees are attached to the office referred to in explanation work 1 or whether or not such office is attached to a particular place। so ये बिल्कुल immaterial है इस सेक्शन के लिए कि क्या उस ऑफिस में कोई किसी तरह की उसको फीस की पेमेंट की जा रही है या नहीं, बेशक से वो पूरी तरह से एक सर्विस हो ह्यूमन काइंड की। लेकिन अगर ऑफिस की बात आती है कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल पुजारी कौन बनेगा किसी मंदिर का, तो वो भी एक तरह से उस पर्टिकुलर ऑफिस की ही बात कर रहा है, या फिर वो उस मंदिर की प्रॉपर्टी किसके हिस्से जाएगी या फिर वो प्रॉपर्टी के ऊपर किसके राइट्स हैं, वो एक तरह से सिविल नेचर का सूट ही माना जाएगा, बेशक से वो पूरी तरह से किसी रिलीजियस राइट या सेरेमनी पे उसको जो डिसीजन है वो डिपेंडेंट हो। फाइन, सो इसमें मेन हमें यही ध्यान रखने की बात है, राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस की बात जहां पे भी आ गई वो सूट ऑफ सिविल नेचर माना जाएगा, बेशक से वो किसी रिलीजियस राइट या सेरेमनी के ऊपर उसका डिसीजन पूरी तरह निर्भर करता हो। फाइन, सो दिस वाज सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। This section is extremely important for the purpose of your examination. Then another question that arises from this court is whether the parties by an agreement can actually bar the jurisdiction of the court or not। क्या A और B मान लो दो पार्टीज हैं, वो कोई एग्रीमेंट कर सकती हैं कि भाई कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो वो सिविल सूट फाइल नहीं करेंगी या फिर किसी स्पेसिफिक कोर्ट में नहीं जाएंगी, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। ये बहुत ही एक इनहेरेंट राइट है किसी भी इंसान के पास कि अगर उसके पास सूट ऑफ सिविल नेचर है तो वो कोर्ट में जाके रेमेडी पा सकता है। ठीक है, जहां पे भी अधिकारों का हनन होगा वहां पे उसको रेमेडी जरूर मिलेगी। नाउ प्रोसीडिंग टू सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 10 is also equally important for the purpose of your examination. Section 10 of CPC basically talks about res sub judice. And section 11 talks about res judicata। ठीक है, तो res sub judice 10 में है और res judicata 11 में है। res sub judice, it is also known as stay of suit. It says no court, so it is basically a bar on the court to proceed with the trial of the civil suit। फाइन, सो सेक्शन 9 में बेसिकली कोर्ट को
हर तरह की पावर दी है कि वो किसी भी सिविल नेचर के सूट को ट्राई कर सकती है अनलेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। लेकिन सेक्शन 10 जो है वो एक एक्सेप्शन है, एक कोर्ट की पावर के ऊपर जो है एक रेस्ट्रिक्शन है। इट सेज नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit। So कोई भी कोर्ट कैसे सूट के ट्रायल के साथ प्रोसीड नहीं कर सकती है, कोई भी कोर्ट ऐसे सूट की ट्रायल के साथ प्रोसीड नहीं कर सकती है जिसमें मैटर इन इशू जो है वो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में भी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है बिटवीन दी सेम पार्टीज or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction और बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट। सो अगर कोई भी केस ऑलरेडी पेंडिंग है कहाँ पे, किसी भी दूसरे कोर्ट में जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उस सूट को ट्राई करने की, या फिर इंडिया से बाहर के किसी कोर्ट में, लेकिन वो कोर्ट कैसा है, वो फॉरेन कोर्ट नहीं है बल्कि वो कोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया हुआ है। फाइन। सो अगर इंडियन टेरिटरी से बाहर भी कोई कोर्ट है और उस कोर्ट को अगर इंडियन गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है तो वो इंडियन कोर्ट ही माना जाएगा, वो फॉरेन कोर्ट नहीं बन जाता है। फाइन। सो स्टे ऑफ सूट या रेस्ट सब जुडाइस जो है वो फॉरेन कोर्ट में किसी पेंडिंग सूट की बात नहीं करता है, बल्कि वो बात कर रहा है अगर कोई सूट ऑलरेडी पेंडिंग है किसी भी इंडियन कोर्ट में जो इंडिया की टेरिटरी में है, या फिर अगर इंडिया की टेरिटरी से बाहर भी है लेकिन अगर उस कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश कर रखा है, या फिर अगर वो सूट जो है ऑलरेडी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो अगर ऑलरेडी इन कोर्ट्स में वो सूट पेंडिंग है, कैसा सूट, जिसमें मैटर इन इशू जो है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू सेम है। फाइन। तो उस केस में जब कोई भी पार्टी किसी दूसरे कोर्ट में अगर सूट इंस्टीट्यूट करती है तो जो दूसरी कोर्ट होगी वो उस सूट को ट्राई नहीं करेगी, उस सूट की ट्रायल के साथ प्रोसीड नहीं करेगी। फाइन। सो इसमें दो चार मेन जो बातें हैं वो एक तो ये है कि मैटर इन इशू जो है वो जो ऑलरेडी पेंडिंग सूट है और अभी जो सूट डाला गया है दोनों में डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए। मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में आप बिल्कुल ही एक अलग मुद्दे पे लड़ रहे हो और जो बाद में जो आपने सूट डाला है वो एक अलग मुद्दे पे है। अगर अलग इशू पे है, अलग मुद्दे पे है तो बार नहीं होगा, लेकिन अगर प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में भी और अब जो आपने सूट डाला है दोनों में ही मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम है। डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली का मतलब ये भी है कि जो मेजर मुद्दा है वो सेम है। इंसिडेंटल इश्यूज हो सकते हैं दोनों में थोड़े बहुत अलग हों, लेकिन मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम है जो आपने प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट में डाला है। दूसरी बात, दोनों पार्टी सेम होनी चाहिए दोनों सूट्स में। ऐसा नहीं है कि पहला जो सूट है वो ए और बी के बीच में है और जो दूसरा सूट है वो ए और सी के बीच में है। यहाँ पे रेस जुडिकाटा नहीं, रेस सब जुडाइस सॉरी नहीं लगेगा।
दोनों सूट में पार्टीज सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सेम भी नहीं है तो वो पार्टी, मान लीजिए कि अब यहाँ पे बी की डेथ हो जाती है, तो इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो अगर इसके बिहाफ पे सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है तब भी रेस सब जुडाइस लगेगा। फाइन। सो दोनों ही सूट्स में पार्टीज का सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो पार्टीज हैं वो अलग अलग हैं तो वहाँ पे स्टे ऑफ सूट नहीं अप्लाई होगा। फाइन। सो फर्स्ट थिंग इज दैट the matter in issue in both the suits has to be directly and substantially same. Secondly, the parties to both the suits has to be same. Thirdly, the previously instituted suit must have been instituted in the court having jurisdiction. अगर उस कोर्ट के पास मान लो पहले जो सूट डाला था उसके पास jurisdiction ही नहीं थी ट्राई करने की उस सूट को, तब स्टे ऑफ सूट नहीं लगेगा। प्रीवियसली जो कोर्ट जहाँ पे आपने केस डाला हुआ था उसके पास जुरिस्डिक्शन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो कहीं ना कहीं वो एक वैलिड डिसीजन दे पाएगी। फाइन। सो सेक्शन 10 का जो मेन पर्पस है, इट इज़ टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स। ऑलरेडी इंडियन कोर्ट्स में इतना ज़्यादा पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन चल रहा है, अगर वही लोग, एक ही इंसान दूसरे के खिलाफ बार बार हर एक कोर्ट में केस डालता रहेगा वो भी सेम मुद्दे पे, तो इतने ज़्यादा केसेस और बन जाएंगे। फाइन। सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकने के लिए जो है स्टे ऑफ सूट का जो प्रोविजन है सेक्शन 10 में दिया हुआ है। देन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 10 स्पेसिफिकली बार्स और स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स द प्रोविजन ऑफ स्टे ऑफ सूट फ्रॉम दोज decisions which are pending in the foreign court. So it says the pendency of a suit in foreign court does not preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action. So अगर कोई भी सूट फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है, बेशक से वो दोनों में ही मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली बेशक से ही सेम है, दोनों में ही पार्टीज भी सेम है और फॉरेन कोर्ट के पास बेशक ज्यूरिस्डिक्शन भी है उस केस को डिसाइड करने की, लेकिन फिर भी फॉरेन कोर्ट में किसी सूट की पेंडेंसी इंडियन कोर्ट को जो है बार नहीं करती है टू ट्राई दी सूट। फाइन। सो फॉरेन कोर्ट में बेशक से कोई सूट पेंडिंग हो, इंडियन कोर्ट सेम टाइम पे सेम पार्टीज में मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल सेम होने के बावजूद भी उस सूट को ट्राई कर सकती है। फाइन। सो स्टे ऑफ सूट या रेस्ट सब जुडाइस जो है वो फॉरेन कोर्ट में अगर कोई सूट पेंडिंग है उनके ऊपर अप्लाई नहीं करता है। फाइन। सो मेन बातें सेक्शन 10 में याद करने की क्या है, दैट नो कोर्ट शैल प्रोसीड नहीं करना है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को नहीं रोक रहा है। आप इंस्टीट्यूट कर सकते हो, लेकिन ये बार जो है वो कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट को आगे प्रोसीड नहीं करना है ट्रायल के साथ। फाइन। सो नो कोर्ट शैल प्रोसीड किस इशू में, जहां पे मैटर इन इशू इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इज सेम इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन दी सेम पार्टीज। सेम पार्टीज हैं, ऑलरेडी प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में मैटर इन इशू डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम है। और कहाँ पे प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट कहाँ पे है, जिस कोर्ट की पावर भी है, जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन भी है उस सूट को ट्राई करने की। तो ऐसी सिचुएशन में जब दूसरी कोर्ट में वो सेम मैटर इन इशू के ऊपर सूट डाला जाएगा तो वो कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगी ट्रायल के साथ, स्टे ऑफ सूट लग जाएगा। ठीक है। सो इट विल बेसिकली वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द प्रीवियस कोर्ट। रेस सब जुडाइस सब 10, सब जुडाइस कहाँ है 10 में, सब 10 और 11 में क्या है फिर रेस जुडिकाटा। ठीक है। बहुत बार यही पूछ लिया जाता है कि स्टे ऑफ सूट या रेस्ट सब जुडाइस कहाँ पे है, तो सेक्शन 10 में है। स्टे ऑफ सूट, सूट के ऊपर एक तरह से स्टे लगाया है, और रेस्ट जुडिकाटा जो है वो सेक्शन 11 में है। सब 10, सब कहाँ पे है सेक्शन 10 में। सो दिस वाज सेक्शन 10 ऑफ द CPC।
इसमें जो भी कीवर्ड्स हैं आपको बहुत ध्यान रखना है कि मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली होना चाहिए, सेम पार्टीज में होना चाहिए, और प्रीवियस जो कोर्ट है उसके पास जुरिस्डिक्शन भी होनी चाहिए टू ग्रांट रिलीफ। तो उस केस में अब जो सब्सिक्वेंट जो कोर्ट जिसमें वो सेम सूट डाला गया है, सेम इशू के ऊपर डाला गया है, वो प्रोसीड नहीं करेगी ट्रायल के साथ, ठीक है। Now, coming to section 11 of the CPC, this particular provision is extremely important for the purpose of your examination, especially for the purpose of prelims. Prelims में से सिर्फ रेस जुडिकाटा के सेक्शन 11 में से आप 10 से 12 क्वेश्चन भी बना सकते हो। सेकेंडली आपको अगर मेंस में भी क्वेश्चन मिलता है रेस जुडिकाटा का, तो कहीं ना कहीं आप सेक्शन 11 की हेल्प से ही पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें आपको 30, 40, 50 पेज पढ़ने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। कुछ केसेस का रेफरेंस जो है वो देना हो तब अलग बात है, बट अदरवाइज रेस जुडिकाटा का जो प्रोविजन है वो इतना एक्सटेंसिव तरीके से सेक्शन 11 में दिया हुआ है कि कोई जिस इंसान ने नॉर्मली भी अगर लो ढंग से पढ़ा हो थोड़ा बहुत, तो वो भी काफ़ी इजीली इसको जो है कवर कर सकता है। सिर्फ सेक्शन 11 की हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है। फाइन, सो ये बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपने सेक्शन 11 के ऊपर कमांड पा ली है तो रेस जुडिकाटा में किसी तरह का भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो सेक्शन 11 जो है वो रेस जुडिकाटा की बात करता है। देखो, स्टे ऑफ सूट जो सेक्शन 10 में है उसमें बेसिकली आपने ऑलरेडी एक कोर्ट में जब सूट आपका केस चल रहा है तो आप दूसरी कोर्ट में सेम मैटर इन इशू पे जो है सूट नहीं प्रोसीड कर सकते, या फिर कोर्ट जो है उस सूट के साथ प्रोसीड नहीं करेगी जब प्रीवियसली किसी कोर्ट में आप ऑलरेडी वो सूट को इंस्टीट्यूट कर चुके हो। फाइन, सो फाइनल डिसीजन दोनों में ही नहीं आया है वहाँ पे, ठीक है। तो तब तक कोर्ट जो है उस सूट को जो है स्टे कर देगी, उस सूट पे स्टे लगा देगी, फाइन, प्रोसीड नहीं करेगी। लेकिन रेस जुडिकाटा में क्या है कि रेस जुडिकाटा में आपने एक सूट फाइल किया और कोर्ट ने उस सूट को डिसाइड कर दिया, ठीक है। आपको बेसिकली एक जजमेंट मिल चुकी है, कोर्ट ने उस मुद्दे को डिसाइड कर दिया। अब वो जो सूट है वो पेंडिंग नहीं है किसी कोर्ट में, आपको डिसीजन मिल चुका है। अब आपको जब डिसीजन मिल चुका है तो वो आपके लिए आपके ऊपर जो है बाइंडिंग होगा, दोनों पार्टीज के ऊपर। अब वही सेम मुद्दा उठा के आप एक नया सूट नहीं डाल सकते हो, बस इतनी सी बात है रेस जुडिकाटा में। सो रेस जुडिकाटा इज बेसिकली बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी इन ऑर्डर टू एंड लिटिगेशन। फाइन, सो अगर ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कोर्ट जो है अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके एक डिसीजन दे चुका है, उसके ऊपर अब बार बार वही चीजें उठाने का कोई फायदा नहीं है। जो कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है उसको आपको सही मानना है, ठीक है। तो रेस जुडिकाटा बेसिकली बार्स institution of suit on the same cause of action on which the decision has already been provided. So res judicata, the provision of res judicata under section 11 says no court shall try any suit. Section 10 में क्या था? No court shall proceed with the trial. ठीक है, प्रोसीड नहीं करना है, वहीं पे स्टे लगा देना है और वेट करना है प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट के में जो जजमेंट मिलेगी उसका। लेकिन रेस जुडिकाटा में कोर्ट ट्राई ही नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोसीड करने के ऊपर बार नहीं है, बल्कि आप ट्राई ही नहीं कर सकते हो। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू। सो सिर्फ सूट के ऊपर ही नहीं बल्कि इशू के ऊपर भी रेस जुडिकाटा लग सकता है। नो कोर्ट शैल try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been। यहाँ पे has been क्यों है? क्योंकि जो प्रीवियस सूट है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, जबकि सेक्शन 10 में वो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है, उसकी प्रोसीडिंग्स चल ही रही हैं। फाइन, सो सेक्शन 11 क्या कह रहा है कि कोई भी कोर्ट ऐसे सूट या इशू को ट्राई नहीं करेगी जिसमें मैटर इन इशू इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट।
प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट नहीं बल्कि फॉर्मर सूट की बात कर रहा है ये। सो अगर कोई भी इशू जो प्रीवियसली जो फॉर्मर सूट में डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था, उसको अब कोई दूसरी कोर्ट ट्राई नहीं कर सकती है। और वो इशू कैसा था? इट वॉज बिटवीन दी सेम पार्टीज, ठीक है। स्ट्रेंजर्स के ऊपर ये भी अप्लाई नहीं करेगा, इट विल अप्लाई ओनली बिटवीन दी सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम, या फिर जिसके अंडर वो क्लेम करें, फॉर एग्जाम्पल लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर दी सेम टाइटल, और दोनों ही पार्टीज सेम टाइटल के अंडर लिटिगेट कर रही हैं, ठीक है। सो मान लो कि अगर दोनों सूट्स में दोनों पार्टीज अलग अलग कैपेसिटी में क्लेम कर रही हैं, तब रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई करेगा। लेकिन अगर दोनों ही पार्टी सेम टाइटल के अंडर जो है कंटेस्ट कर रही हैं, तो उस केस में रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई such subsequent suit or the suit in which such issue has been substantially raised and has been heard and finally decided by such court। so ये जो issue है, ये जो former court है, it has been already heard and finally decided by the former court। तो उस केस में अब सब्सीक्वेंट जो कोर्ट है जिसमें आपने वो सूट डाला है, वो उस सूट को ट्राई नहीं करेगी। फाइन। सो इसमें भी वही दो चार सेम सी बातें हैं, सिर्फ इसमें एक जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो फॉर्मर कोर्ट है, जो फॉर्मर सूट है, वो ऑलरेडी इट हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, इट हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, डिसीजन ऑलरेडी इसमें आ चुका है। हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड का मतलब क्या है कि कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया था और उस केस को मेरिट्स पे डिसाइड किया है। अगर कोई डिसीजन कोर्ट ने मेरिट्स पे दे दिया है किसी भी मुद्दे को सुन के, तो उस मुद्दे को अब आप दोबारा किसी कोर्ट में सूट की फॉर्म में नहीं कंटेस्ट कर सकते हो। फाइन। सो मेन इसमें क्या बातें हैं? इट इज ऑल्सो बार ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। एक तरह से कोर्ट को ही बार कर रही है कि कोर्ट को प्रोसीड नहीं, कोर्ट को ट्राई नहीं करना है एनी सूट। कैसा सूट? जिसमें जो इशू है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू था इन अ फॉर्मर सूट, ठीक है। दोनों में ही डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली वो चीज, वो इशू जो है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए, सेम पार्टीज के बीच में होना चाहिए, और दोनों ही पार्टीज सेम टाइटल के अंडर लिटिगेट कर रही होनी चाहिए। और जो फॉर्मर कोर्ट थी वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। सो कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए प्रीवियस कोर्ट की, जिस कोर्ट ने पहले जो डिसीजन दिया था वो उसकी जुरिस्डिक्शन भी होनी चाहिए। अगर उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, पावर ही नहीं थी, तो उस केस में भी रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। सो मैटर इन इशू कैसा होना चाहिए? डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम पार्टीज के बीच में होना चाहिए, सेम टाइटल के अंडर वो कंटेस्ट कर रहे हो, और जो फॉर्मर सूट है, फॉर्मर जो कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने के लिए। फाइन। और फॉर्मर कोर्ट ने जो है वो मैटर हर्ड एंड फाइनली डिसाइड किया होना चाहिए। ये दो चार चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। हर्ड एंड फाइनली डिसाइड का मतलब है मेरिट्स के ऊपर डिसीजन होना चाहिए। अगर डिसीजन मेरिट्स पे नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते कि कोर्ट हैज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड द इशू। Now explanations to section 11 are extremely important for the purpose of your examination. There are a total of 8 explanations. सारी ही explanations बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और explanations से questions भी बहुत बार पूछे जाते हैं। फाइन। सो हमें explanations को बिल्कुल भी avoid नहीं करना है। पहली explanation section 11 की क्या कह रही है? That the expression former suit shall denote a suit which has been decided prior
to the suit in question whether or not it was instituted prior thereto. Former suit का मतलब क्या है, जिसका डिसीजन पहले आ गया. फॉर एग्जाम्पल ए ने दिल्ली की एक कोर्ट में बी के खिलाफ कोई केस जो है इंस्टीट्यूट किया, और ए ने जो है बी के खिलाफ सेम इशू के ऊपर जो डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इशू था दिल्ली की कोर्ट में, मुंबई की कोर्ट में भी इंस्टीट्यूट कर दिया. ठीक है, दोनों में पार्टी सेम है, मैटर इन इशू दोनों में डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम है, दोनों सेम टाइटल पे लिटिगेट कर रहे हैं. अब मान लो पहले दिल्ली की कोर्ट में बेशक से इसने ये केस डाला था, लेकिन अगर डिसीजन पहले मुंबई की कोर्ट का आ गया तो वो फॉर्मर सूट माना जाएगा. बेशक से इसको बाद में इंस्टीट्यूट किया, जिसका डिसीजन पहले आया वो फॉर्मर सूट माना जाएगा. तो जैसे ही मुंबई की कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन दिया, इट विल बार द कोर्ट एट दिल्ली फ्रॉम ट्राइंग द पर्टिकुलर सूट, बिकॉज the matter in issue, which is directly and substantially in issue in this court as well, has been heard and finally decided by the court in Mumbai. ठीक है, so former suit का मतलब क्या है, जो पहले decide हो गया, which has been decided prior to the suit in question. जिसका decision पहले आ गया वो former माना जाएगा. जरूरी नहीं है कि वो बाद पहले इंस्टीट्यूट भी हुआ हो, जिसका डिसीजन आ गया पहले वही फॉर्मर बन जाएगा. नाउ एक्सप्लेनेशन 2 सेज फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन द कॉम्पिटेंस ऑफ अ कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजंस एज टू राइट टू अपील फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ सच कोर्ट. सो रेस जुडिकाटा कहाँ पे अप्लाई होता है, जब जिस कोर्ट ने फॉर्मर डिसीजन दिया था वो कॉम्पिटेंट कोर्ट हो. सो एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रहा है कि बेशक के कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट का जो है राइट टू अपील से कोई लेना देना नहीं है. फाइन, सो बेशक से उस कोर्ट का जो डिसीजन है वो अपीलेबल हो या ना हो, या फिर उसकी अपील कहीं जाएगी या नहीं जाएगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट हैज नथिंग टू डू विद राइट ऑफ अपील फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ सच कोर्ट. ठीक है, तो राइट टू अपील का जो है कोई किसी तरह का कॉम्पिटेंसी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. नाउ एक्सप्लेनेशन 3 सेज द मैटर अबव रेफर्ड टू मस्ट इन द फॉर्मर सूट. फॉर्मर सूट का मतलब बताओ क्या है, विच हैज बीन डिसाइडेड प्रायर, जिसका डिसीजन प्रायर आया है. द मैटर अबव रेफर्ड टू मस्ट इन द फॉर्मर सूट हैव बीन alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other. So explanation 3 जो है सेक्शन 11 की वो बात कर रहा है मैटर से, क्योंकि मैटर के ऊपर ही रेस जुडिकाटा लगता है कि जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था फॉर्मर सूट में, अब जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है वो उस सेम मैटर को जो है ट्राई नहीं करेगी. सो वो मैटर एग्जैक्टली है क्या, उसका मतलब क्या है. तो मैटर एज पर एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 11 इज द मैटर विच हैज बीन alleged by one party and either denied or admitted by other. So एक पार्टी ने अलेज किया हो और दूसरी पार्टी ने या तो डिनाई किया हो या एडमिट किया हो, वही मैटर है. सो देखो मैटर इन इशू जो है वो भी यही होता है, जब इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं कोर्ट में तो इशू तभी आता है जब एक पार्टी एक तरह की बात बोल रही हो, उसने कुछ एक चीज अलेज की हो और दूसरी पार्टी उसको या तो डिनाई कर दे या एडमिट कर दे. फाइन, सो मैटर का मतलब क्या है, मैटर विच हैज बीन आइदर विच हैज बीन अलेजेड बाय वन पार्टी, एक पार्टी अलेज करे और दूसरी पार्टी उसको या तो डिनाई कर दे या एडमिट कर दे, और वो एडमिशन या डिनाइल जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है या फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के ऊपर एक एलिगेशन लगाई और दूसरी पार्टी ने रिटन स्टेटमेंट में उस पर्टिकुलर एलिगेशन के ऊपर कुछ नहीं बोला, तो वो एक तरह से इम्प्लाइड एडमिशन माना जाता है. फाइन, सो जो मैटर है वो एक पार्टी अलेज करे, दूसरी पार्टी डिनाई या एडमिट करे, वो डिनाइल या एडमिशन जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है या
इम्प्लाइड भी हो सकता है। नाउ explanation 4 says any matter which might and ought to have been made ground of defense or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit। एक्सप्लेनेशन 4 जो है सेक्शन 11 की, वो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बात करता है। सो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है कि ऐसा मैटर जो पार्टी को कंटेस्ट करना चाहिए था पुराने सूट में और वो उसने नहीं कंटेस्ट किया, ठीक है। सो एक तरह से उसने अपने राइट को ही फोरफिट कर दिया है और ये माना जाएगा कि जो डिफेंस या अटैक का ग्राउंड वो पार्टी ले सकती थी पुराने सूट में, अगर उसने नहीं लिया तो वो भी एक मैटर है डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन सच सूट। फाइन। सो देखो जनरल रूल क्या कहता है सेक्शन 11 का कि रेस जुडिकाटा सिर्फ उन्हीं मैटर्स पे लगेगा जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू होते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन 4 जो है वो इस जनरल रूल का एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन एक्सप्लेनेशन 4 क्या कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू के ऊपर ही वो मैटर डिसाइड हो। अगर कोई पार्टी का वो माइट एंड ओट इट शुड हैव बीन माइट और ओट इट शुड हैव बीन अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक, लेकिन अगर उस पार्टी ने वो ग्राउंड नहीं लिया तो उस केस में भी उस मैटर पे रेस जुडिकाटा लगेगा। सो एक तरह से कोर्ट यही कह रहा है कि भैया आपका जितना भी मैटर, आपका जितना डिस्प्यूट, आपका जितने इश्यूज हैं एक ही सूट में ले आओ। ऐसा नहीं है कि आप एक मुद्दे पे आज लड़ रहे हो फिर सिमिलर ग्राउंड्स पे सिमिलर जो इशू है उसके दूसरे ग्राउंड पे अगले दिन लड़ रहे हो। जितने भी इश्यूज हैं उस पर्टिकुलर सूट के रिगार्डिंग आज ही ले आओ। एक दिन डिक्लेरेशन मांग रहे हो, दूसरे दिन पार्टीशन मांग रहे हो, तीसरे दिन प्रॉपर्टी का पोजेशन मांग रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। सो कोर्ट क्या कह रही है कि ब्रिंग द सूट कंप्लीट एट द फर्स्ट इंस्टेंस इटसेल्फ। बार बार आप सेम मुद्दों को या सेम तरह के मुद्दों को नहीं उठा सकते हो। अगर आपके पास वो ग्राउंड पहले से अवेलेबल था और आपने पहले उस ग्राउंड के बेसिस पे सूट में जो है अपना डिफेंस या अटैक का ग्राउंड नहीं बनाया, तो आपको बाद में भी उसके लिए कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। So what might and ought to have been a ground of defense or attack, if it has not been claimed, it will deemed to have been a matter directly and substantially in issue, ठीक है। उस इशू को भी जो might and ought to have been a ground of defense or attack, अगर वो आपने क्लेम नहीं किया फॉर्मर सूट में तो वो माना जाएगा कि वो might and ought वाला ग्राउंड भी जो डिफेंस या अटैक का एक ग्राउंड हो सकता था वो भी आपका डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है। फाइन। सो इसमें मेनली आपको यही ध्यान रखना है, माइट एंड ओट विच माइट एंड ओट शुड हैव बीन अ ग्राउंड ऑफ अटैक और डिफेंस होना चाहिए था। कि कोई भी नॉर्मल इंसान भी अगर कोई उस मुद्दे के बारे में सुनेगा तो यही बोलेगा भाई पहली बार में ही तुमने ये सारी बातें क्यों नहीं बताई, ठीक है। सो अगर उसके पास ऑलरेडी वो ग्राउंड अवेलेबल था डिफेंस या अटैक के लिए, फिर भी अगर उसने नहीं उठाया तो वो माना जाएगा कि वो पर्टिकुलर मैटर भी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा डायरेक्ट रेस जुडिकाटा नहीं बल्कि एक तरह सा कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टैट्यूट की इस ढंग से की जाती है कि जो भी ग्राउंड्स आप ले सकते थे वो भी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू ही माना जाएगा। देन explanation 4 is extremely important for the purpose of your examination। मेंस में भी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली दिल्ली जुडिशरी या फिर हरियाणा जुडिशरी में, क्योंकि आपको कई बार एक तरह की सिचुएशन दे दी जाती है जिसमें आपने आधे क्लेम मांगे आधे क्लेम नहीं मांगे हैं, तो वहाँ पे आप रेस जुडिकाटा अप्लाई कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई कर सकते हो। देन explanation 5 provides any relief claimed in plaint which is not expressly granted by the
decree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused. देखो रेस जुडिकाटा किन के ऊपर लगता है, जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू थे, ठीक है। अब उस मैटर पे कोर्ट या तो आपको रिलीफ दे देगी या फिर कोर्ट आपको डिनाइल कर देगी कि भाई आप जो है इस रिलीफ के एलिजिबल नहीं हो, आपको ये रिलीफ नहीं मिल सकता है। फाइन। सो पहले तो आपको वो रिलीफ मांगना पड़ता है प्लेंट में। प्लेंट जो है वो प्लेंटिफ की प्लीडिंग होती है। अगर प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट में, अपनी प्लीडिंग में कोई रिलीफ क्लेम किया है, अब कोर्ट की वैसे तो ड्यूटी बनती है कि कोर्ट स्पेसिफाई करे कि आपको इसमें रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिलता है, लेकिन अगर कोर्ट ने एक्सप्रेसली डिक्री में वो रिलीफ ग्रांट नहीं भी किया तो भी ये माना जाएगा कि कोर्ट ने आपको वो रिलीफ रिफ्यूज कर दिया है। फाइन। सो एनी रिलीफ क्लेम्ड एंड नॉट ग्रांटेड बाय द कोर्ट, it shall be deemed to have been refused. Any relief claimed not granted by the court, it shall be deemed to have been refused. अगर आपने कुछ क्लेम मांगा है, कोर्ट ने एक्सप्रेसली डिक्री में ग्रांट नहीं किया वो रिलीफ, तो ये माना जाएगा कि कोर्ट ने आपको उस रिलीफ को देने से मना कर दिया है। Now, explanation 6 is another very important explanation which basically talks about representative suit. देखो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा जब भी आप क्लासेस लें तो अपने बेयर एक्ट में ही साथ के साथ इनके जो मेन कीवर्ड्स हैं वो साथ में भी लिख सकते हो आप। फॉर एग्जांपल, या तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो फॉर्मर सूट कि एक्सप्लेनेशन 2 बेसिकली फॉर्मर सूट की बात कर रहा है। फॉर्मर सूट का मतलब क्या है, जिसने उस केस को पहले डिसाइड किया है। एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो कोर्ट की कॉम्पिटेंस के बारे में बात कर रहा है। एक्सप्लेनेशन 3 जो है वो मैटर की बात कर रहा है, दैट इज द मैटर शुड हैव बीन एलिजेड बाय वन पार्टी एंड आइदर डिनाइड और एडमिटेड बाय द अदर। एक्सप्लेनेशन 4 जो है वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें आप साथ में ही लिख लेंगे तो आपको ये जो कीवर्ड्स या फिर जो प्रोविजंस उनको याद करने में या उनको रिवाइज करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, यहाँ पे आपको मेन जो टर्म्स हैं वो है माइट एंड ऑट शुड हैव बीन अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन दी फॉर्मर सूट। एक्सप्लेनेशन 5 जो है वो बात कर रहा है रिलीफ की। इफ द रिलीफ हैज़ बीन क्लेम्ड, it has been not granted, it shall be deemed to have been refused. एक्सप्लेनेशन 5 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव सूट के केस में रेस जुडिकाटा की बात कर रहा है। सो एक्सप्लेनेशन 6 says where persons litigate bona fide in the respect of a public right or a private right claimed in common for themselves and others. So या तो कोई इंसान किसी पब्लिक राइट के लिए कंटेस्ट कर रहा है या फिर ऐसे प्राइवेट राइट के लिए कंटेस्ट कर रहा है जो कई लोगों के बीच में कॉमन, जो कई लोग जो है उसको क्लेम करना चाहते हैं, और वो जो इंसान है वो अपने लिए भी और बाकियों के लिए भी उस राइट को कंटेस्ट करता है। Then all persons interested in such right for the purposes of this section be deemed to claim under the provisions so litigating. So अगर कोई इंसान अपने और दूसरे के बिहाफ पे कंटेस्ट करता है या फिर किसी पब्लिक राइट के लिए कंटेस्ट करता है तो उस राइट में जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, बेशक से वो उस सूट में पार्टीज नहीं है। देखो रेस जुडिकाटा सिर्फ पार्टीज के ऊपर ही अप्लाई करता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन 6 इज अगेन एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 11 ओनली, जिसमें पार्टीज के अलावा भी किसी थर्ड पर्सन पे रेस जुडिकाटा लग सकता है। वो कब लग सकता है, जब रिप्रेजेंटेटिव सूट की सिचुएशन हो। फाइन। सो जो भी लोग उस सूट में इंटरेस्टेड थे वो सब जो है
they are deemed to be claiming through that particular person only, क्योंकि एक तरह से उन्होंने अपनी सारी पावर्स उस लिटिगेटिंग पर्सन को दे दी हैं। फाइन, सो बेशक से नाम एक ही बंदे का चल रहा है केस कोर्ट में, लेकिन फिर भी वो सब के इंटरेस्ट के लिए अगर कंटेस्ट करता है तो रिलीफ चाहे उस एक बंदे के नाम पे ही मिला हो, लेकिन फिर भी वो जिन जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन सब के ऊपर ये बार लग जाएगा, दैट दे कैन नॉट अगेन इंस्टीट्यूट द सूट ऑन दी सेम ग्राउंड्स। फाइन, सो explanation 6 talks about representative suit. Then explanation 7 says the provisions of this section shall apply to a proceeding for the execution of a decree, and references in this section to any suit, issue or former suit shall be construed as references respectively to a proceeding for the execution of a decree, question arising in such proceeding and a formal proceeding for the execution of that decree. So एक्सप्लेनेशन 7 जो है वो कह रही है कि रेस जुडिकाटा का जो प्रोविजन सूट्स के ऊपर अप्लाई करता है वो एग्जीक्यूशन के ऊपर भी अप्लाई करेगा। देखो वैसे तो एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन और अ मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द डिक्री ओनली। फाइन, सो सूट का एक तरह से एक्सटेंशन ही है एग्जीक्यूशन, लेकिन एक्सप्लेनेशन 7 ने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि सूट्स के ऊपर जैसे रेस जुडिकाटा लगता है वैसे ही एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी रेस जुडिकाटा लगेगा। फाइन, सो 6 में क्या है रिप्रेजेंटेटिव सूट, 7 में एग्जीक्यूशन। एक्सप्लेनेशन 8 सेज एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। ये इशू किसने डिसाइड किया है? ऐसी कोर्ट ने जिसकी लिमिटेड जुरिस्डिक्शन थी। कॉम्पिटेंट टू डिसाइड सच इशू, लेकिन ये जो कोर्ट है बेशक से लिमिटेड जुरिस्डिक्शन की कोर्ट है, लेकिन इसने जो इशू डिसाइड किया है उस इशू को डिसाइड करने के लिए कोर्ट कॉम्पिटेंट थी। देन सच अ डिसीजन शैल ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा इन अ सब्सिक्वेंट सूट, notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised. So explanation 8 जो है वो बेसिकली इश्यूज के ऊपर रेस जुडिकाटा की बात करता है। देखो जब भी कोई इंसान कोर्ट में जाता है तो वो उसके कई सारे इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल कोर्ट फ्रेम करती है कि 1 2 3 4 आपके ये सारे इश्यूज हैं इस कोर्ट में, ठीक है। इश्यूज फ्रेम करने के बाद जो है कोर्ट उस केस की हियरिंग के साथ प्रोसीड करती है। अब एक्सप्लेनेशन 8 जो है वो बात कर रही है कि जी ये जो कोर्ट है जिसने ये इशू डिसाइड किया, मान लीजिए इशू नंबर 1 इस कोर्ट ने डिसाइड किया है। अब इस कोर्ट के पास ये पावर नहीं थी कि वो ये चारों के चारों इश्यूज को डिसाइड कर पाए, लेकिन इसके पास इतनी पावर तो थी कि ये इस फर्स्ट इशू को तो डिसाइड कर ही सकती थी, ठीक है। सो इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन लिमिटेड थी। लिमिटेड का मतलब क्या है कि ये पूरे के पूरे सूट को डिसाइड नहीं कर सकती थी, लेकिन ये एक इशू को डिसाइड कर सकती थी जिसने इसको फाइनली डिसाइड भी किया है। सो अगर इस लिमिटेड जुरिस्डिक्शन की कोर्ट ने एक इशू को डिसाइड किया है जो डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट थी, तो इस इशू के ऊपर अब दूसरी कोर्ट में जो है रेस जुडिकाटा लग जाएगा। अब मान लो कि ये जो सारे इश्यूज हैं वो किसी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट में डाले गए हैं, तो उस वो कोर्ट जो है वो ये जो इश्यूज पुराने वाली लिमिटेड जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकती थी उनको तो डिसाइड कर सकती है, लेकिन ये जो पहला इशू पुरानी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, अब ये नई कोर्ट उस इशू को डिसाइड नहीं करेगी, क्योंकि पुराने वाली कोर्ट ने जिसने ये फर्स्ट इशू डिसाइड किया था वो कम से कम उस इशू को डिसाइड करने के लायक तो थी ही। फाइन, सो इशू के ऊपर भी रेस जुडिकाटा लग सकता है, बेशक से पूरे सूट को डिसाइड करने के लिए उस कोर्ट की पावर ना भी हो। फाइन, सो
सेक्शन 11 हैज़ 8 एक्सप्लेनेशन। सारी की सारी एक्सप्लेनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही समझ के और अच्छे से ध्यान से ये सारी चीज़ें करनी है। इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, थोड़े थोड़े कीवर्ड्स को इधर से उधर घुमा के जो है बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस प्रोविज़न की और आपने 2-4 बार इस प्रोविज़न को अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको कोई भी इशू इसमें कभी भी नहीं आएगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। फाइन। सो सेक्शन 11 को बहुत ध्यान से, चाहे आपको हाफ एन आवर ही क्यों ना लगे, लेकिन एक बार आपको बहुत ध्यान से पढ़ना कि एग्जैक्टली फॉर्मल सूट का क्या मतलब है, या फिर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में एग्जैक्टली क्या क्या टर्म्स यूज किए, विच माइट एंड ओट हैव बीन द ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक। ये जो टर्म्स हैं, ये जो की वर्ड्स हैं, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ये थोड़े से जो है चाहे लिख लिख के ही याद करने पड़े, आप ज़रूर एक बार इनको, सेक्शन 11 को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। Another important question that arises from res judicata is whether res judicata is also applicable between co-defendant and co-plaintiffs. Fine. So parties का मतलब यहाँ पे exactly क्या है? So res judicata में res judicata जो है वो सेम पार्टीज के ऊपर अप्लाई करता है। तो क्या यहाँ पे अगर को डिफेंडेंट या मान लीजिए को प्लेंटिफ हैं और ये केस डिसाइड किया है किसी कोर्ट ने, तो क्या अब एक प्लेंटिफ दूसरे प्लेंटिफ के खिलाफ इसी इशू पे दूसरा सूट फाइल कर सकता है? अब वो प्लेंटिफ तो यही बोलेगा कि जी हम सेम पार्टीज कहाँ हुई, मैं तो उस सूट में प्लेंटिफ था जबकि मैं इस सूट में डिफेंडेंट हूँ, तो कहीं ना कहीं हम सेम टाइटल पे तो लिटिगेट नहीं कर रहे हैं, राइट? सो whether the res judicata is applicable between co-plaintiff and co-defendant or not, it was decided in one of the famous cases as well. The name of the case is Iftikhar Ahmed versus Syed Meherban Ali. So को प्लेंटिफ्स या को डिफेंडेंट्स के बीच में क्या रेस जुडिकाटा लगेगा या नहीं लगेगा, तो इस केस के अलावा भी और भी कई सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है डिसीजन दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि बिल्कुल को प्लेंटिफ या को डिफेंडेंट के बीच में भी रेस जुडिकाटा लग सकता है, प्रोवाइडेड इट फुलफिल सर्टेन कंडीशंस। और वो कंडीशंस क्या है कि वो जो केस है, जो केस डिसाइडेड था, वो जो उस केस में देयर शुड हैव बीन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन दी पार्टीज, ठीक है? सो नए केस में मान लीजिए पुराने केस में ए बी ने जो है सी और डी के खिलाफ केस डाला था और उनको रिलीफ मिल गया। अब क्या ए बी के खिलाफ सेम मैटर पे केस डाल सकता है या नहीं डाल सकता है? क्योंकि पुराने केस में जो है ये दोनों तो साथ मिलके ही लड़ रहे थे, कोई ऑपोजिट पार्टीज तो थी नहीं। तो कोर्ट ने क्या कहा कि को प्लेंटिफ या को डिफेंडेंट भी तब उनके बीच में जो है रेस जुडिकाटा लगेगा जब पुराने सूट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो दोनों के बीच में ऑलरेडी, और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना जरूरी हो in order to determine the issue in the case. So it should, the conflict must have been necessary to decide to give decision in the previous case. Thirdly, कोर्ट ने उस केस को conclusively determine भी किया हो, और को डिफेंडेंट्स या को प्लेंटिफ जो है वो नेसेसरी या प्रॉपर पार्टीज होनी चाहिए फॉर्मर सूट में। तो उस केस में को प्लेंटिफ या को डिफेंडेंट्स के बीच में भी रेस जुडिकाटा लगेगा। फाइन। सो अगर कॉन्फ्लिक्ट था, मान लीजिए दोनों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट था और उस कॉन्फ्लिक्ट को डिसाइड करना जरूरी था उस केस में डिसीजन देने के लिए, तो और कोर्ट ने डिसीजन भी दिया है, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन भी हुआ है उस इशू का, तब जो है को डिफेंडेंट या को प्लेंटिफ्स के बीच में भी रेस जुडिकाटा लगेगा। अब वो उस इशू को दोबारा जो है किसी सब्सिक्वेंट सूट में नहीं उठा सकते क्योंकि ऑलरेडी वो डिसाइड हो चुका है।
राइट। सो मेरिट्स पे तो डिसीजन हुआ ही है वहां पे, बेशक से वो सेम साइड पे थे उस टाइम। नाउ सेक्शन 12 can be said to be a residuary section of res judicata only। सेक्शन 12 भी एक तरह का बार ही है फर्दर सूट पे, और रेस जुडिकाटा जो सेक्शन 11 में है वो भी एक तरह से फर्दर सूट पे बार है। लेकिन सेक्शन 11 और 12 में क्या डिफरेंस है कि 11 जो है वो बात करता है मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन दी फॉर्मर सूट। तो उस सेम मैटर के ऊपर जो है आप किसी और केस, किसी कोई जो और कोर्ट है वो प्रोसीड नहीं कर सकती विद द ट्रायल। लेकिन सेक्शन 12 जो है वो बोल रहा है कि उसके अलावा आखिर कौन से सूट के ऊपर बार है। रेस जुडिकाटा के अलावा भी कुछ सूट्स बार्ड हैं, वो सूट्स कहाँ दिए हुए हैं, सेक्शन 12 में। सो सेक्शन 12 सेज वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रीक्लूडेड बाय रूल्स। कहाँ से आती है ये वाली पावर, या कहाँ से ये प्रोहिबिशन आता है, रूल्स से। इफ द प्लेंटिफ इज प्रीक्लूडेड बाय रूल्स, रूल्स कहाँ पे है, ऑर्डर्स में। If the plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, so उस cause of action को अगर rules ने preclude कर दिया है from instituting the suit, in that case the plaintiff shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies। so अगर रूल्स में किसी को प्रोहिबिट कर दिया है सूट इंस्टीट्यूट करने से, तो वो इंसान अब जहाँ जहाँ पे भी सीपीसी एप्लीकेबल, स्पेशली द इंडियन कोर्ट्स स्पेसिफिकली, वहाँ पे जो है वो इंसान अब फर्दर सूट नहीं डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर 2 रूल 2 जो है वो भी एक बार है फॉर इंस्टीट्यूटिंग ऑफ फर्दर सूट। सो ऑर्डर 2 रूल 2 बेसिकली क्या बोल रहा है कि उस कोज ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज हैं आप इकट्ठा एक ही बार में फाइल कर दो। अगर आप नहीं फाइल करते हो तो आप दोबारा कोई सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हो। फाइन। सो ऐसे इश्यूज जो रेस जुडिकाटा में स्पेसिफिकली बार्ड नहीं है सेक्शन 11 में, लेकिन रूल्स में बार्ड हैं, तो उनके ऊपर सेक्शन 12 जो है वो अप्लाई करेगा। सेक्शन 12 भी जो है फर्दर सूट्स को एक तरह से प्रोहिबिट करता है। और भी बहुत सारी जगह ऐसे बार्स हैं सीपीसी में। फॉर एग्जांपल ऑर्डर 9 रूल 9, अगर प्लेंटिफ जो है वो हियरिंग पे नहीं आता है तो उस केस में भी कोर्ट जो है सूट को डिसमिस कर देगी और सेम कोज ऑफ एक्शन पे अब जो प्लेंटिफ है वो सूट फाइल नहीं कर सकता, वो भी एक बार है एक तरह से। सिमिलरली ऑर्डर 11 रूल 21 also provides such bar dismissal of suit for non-compliance with order of discovery। Order 22 Rule 9 abatement of suit, एक बार सूट अबेट हो गया तो फिर आप एक फ्रेश सूट नहीं डाल सकते हो। Order 23 Rule 1 कोर्ट की लीव के बिना अगर आप विड्रॉ करते हो सूट को तब भी आप दोबारा सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हो। कॉम्प्रोमाइज डिक्री अंडर ऑर्डर 23 रूल 3A। देखो ये बहुत सारे ऐसे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें मैटर जो है वो इट हैज़ नॉट बीन फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड। ठीक है, रेस जुडिकाटा कहाँ पे लगता है, जहाँ पे मैटर जो है वो इट हैज़ बीन फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड बाय द कोर्ट, मतलब डिसीजन कोर्ट ने मेरिट पे लिया था, तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा लगता है। लेकिन ऐसे भी कई सारे प्रोविजंस हैं सीपीसी में जो
बेशक से मैटर जो है वो इट हैज़ नॉट बीन फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड, मैटर जो है वो मेरिट्स पे डिसाइड नहीं हुआ था, फिर भी फर्दर जो फ्रेश सूट जो है वो डालना प्रोहिबिटेड है। फाइन, सो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं सीपीसी में जहाँ पे बेशक से द मैटर हैज़ नॉट बीन फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, बट नेवरदीलेस इट पुट्स अ बार ऑन द कोर्ट टू प्रोसीड विद द ट्रायल। नाउ सेक्शन 12 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें कई बार लगता है कि रेस जुडिकाटा तो सिर्फ सेक्शन 11 में ही है। सेक्शन 12 इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रेस जुडिकाटा ओनली, लेकिन थोड़ा सा अलग तरह का रेस जुडिकाटा। सेक्शन 11 का जो रेस जुडिकाटा है वो उन मैटर्स के ऊपर लगता है जो विच हैज़ बीन ऑलरेडी फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड, और उसके अलावा जो भी 8 एक्सप्लेनेशंस हैं उनके ऊपर अप्लाई करता है। उनके अलावा भी कुछ सूट्स जो हैं वो बार्ड हैं, तो उनके प्रोविजन जो है वो सेक्शन 12 में है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर 2 रूल 2 में अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, या फिर कॉम्प्रोमाइज डिग्री के केस में कोई भी केस आता है, या विड्रॉल के केस में आता है, तो आप ज़रूर सेक्शन 12 को जो है उसमें मेंशन करें। अगर मेंस का कोई भी पेपर आता है क्वेश्चन, ऑर्डर 9 रूल 9, ये एक बार डीजीएस के लास्ट ईयर में जो है मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ था ये, जिसमें सिचुएशन कुछ ऐसी ही दी हुई थी कि प्लेंटिफ जो है हियरिंग की डेट पे नहीं आता है, तो वेदर ही वुड बी बार्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग द फर्दर सूट और नॉट। ठीक है, तो फर्दर सूट के बार के ऊपर ही था, लेकिन हमारे दिमाग में नॉर्मली यही चीज़ आती है कि बार जो है फर्दर सूट का वो तो सिर्फ रेस जुडिकाटा में ही, अगर उसमें फुलफिल नहीं होता है तो शायद हम कर सकते हैं। लेकिन आपको सेक्शन 12 भी याद रखना है कि अगर रूल्स में भी बार है कहीं पे फ्रेश सूट पे, तो वो भी अप्लाई करना ज़रूरी है। फाइन, सो ये जो सारे के सारे ऑर्डर्स में आप जब भी मेंस में लिखें तो ऑर्डर तो सेक्शन 12 जो है वो ज़रूर रेफर करें। नाउ सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ सीपीसी टॉक्स अबाउट फॉरेन जजमेंट्स। अब तक जो रेस जुडिकाटा था, रेस सब जुडाइस था, वो सारा जो है इंडियन कोर्ट्स के ऊपर ही अप्लाई करने की बात थी। 13-14 बताते हैं कि क्या रेस जुडिकाटा या रेस सब जुडाइस फॉरेन कोर्ट की जजमेंट्स के ऊपर भी लग सकता है या नहीं, या फिर फॉरेन कोर्ट्स की जजमेंट की क्या रेलेवेंस है। देखो, फॉरेन कोर्ट्स में अगर कोई केस पेंडिंग है तो वो इंडियन कोर्ट को प्रोहिबिट नहीं करेगा। सेक्शन 10 में स्पेसिफिकली ये दिया हुआ है कि अगर कोई केस फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है तो उसकी वजह से इंडियन कोर्ट के ऊपर कोई बार नहीं है टू प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ दैट सूट। लेकिन फॉरेन जजमेंट्स की एग्जैक्टली क्या रेलेवेंस है, या फिर क्या फॉरेन कोर्ट से अगर कोई जजमेंट लेके आया है तो उस जजमेंट के बेसिस पे इंडियन कोर्ट के ऊपर रेस जुडिकाटा लग सकता है या नहीं। सो सेक्शन 13 सेज व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, किन केसेस में फॉरेन जजमेंट का क्या मतलब है, अ जजमेंट which has been delivered by a foreign court. So it says a foreign judgment shall be conclusive. ये तो जनरल रूल हो गया कि फॉरेन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव होगी टू एनी मैटर thereby directly adjudicated between the same parties. सो जो भी इशू डायरेक्टली एडजुडिकेट हुआ है सेम पार्टीज में, उन पर्टिकुलर एडजुडिकेशंस के केस में फॉरेन जजमेंट जो है कंक्लूसिव होगी, और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। तो जनरल रूल क्या कहता है सेक्शन 13 का, कि जो फॉरेन जजमेंट है वो कंक्लूसिव होगी किन मैटर्स में जो दो पार्टीज के बीच में डायरेक्टली एडजुडिकेट हो चुके हैं। फाइन, सो मान लीजिए कि कोई ब्रिटेन की या फिर अमेरिका की किसी कोर्ट से कोई जजमेंट लेके आता है, तो हमारी कोर्ट्स ये नहीं बोलेंगे कि ये तो फॉरेन कोर्ट की जजमेंट है, यहाँ पे मान्य नहीं है। वो फॉरेन कोर्ट की जजमेंट बिल्कुल मान्य है। ठीक है, सो फॉरेन कोर्ट की जजमेंट्स इंडिया में कंक्लूसिव प्रूफ हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ डायरेक्टली एडजुडिकेटेड मैटर्स के ऊपर ही। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉरेन जजमेंट्स के केस में भी रेस जुडिकाटा लगेगा, लेकिन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा
नहीं लगेगा। सिर्फ जो मैटर डायरेक्टली एडजुडिकेट हुए हैं, माइट एंड ओट वालों की बात नहीं है, जो बिल्कुल डायरेक्टली एडजुडिकेट हुए हैं दो पार्टीज के बीच में, और अगर फॉरेन कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है तो वो फॉरेन जजमेंट उस पर्टिकुलर डायरेक्टली एडजुडिकेटेड मैटर के ऊपर एक कंक्लूसिव प्रूफ होगी। लेकिन किन केसेस में फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगी? ये 6 ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर फॉरेन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव नहीं होगी। अदरवाइज जनरल रूल क्या कहता है कि फॉरेन जजमेंट को जो है हम कंक्लूसिव मानेंगे और वो बिल्कुल इंडियन कोर्ट के ऊपर एक रेस जुडिकाटा अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन किन केसेस में वो कंक्लूसिव नहीं होंगी? वेयर इट हैज नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, जब ये कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट की जजमेंट ना हो, ठीक है, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ने प्रोनाउंस ना की हो। वेयर इट हैज नॉट बीन गिवन ऑन मेरिट्स ऑफ द केस, जब ये केस की मेरिट्स पे ना दी गई हो। Where it appears on the face of the proceeding to be founded on any incorrect view of international law or refusal to recognize the law of India in cases in which such law is applicable. For example, मान लीजिए दो हिंदुओं ने इंडिया में शादी की थी, इंडियन जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर। अब वो जाके अमेरिका में अगर डाइवोर्स ले लेते हैं और अगर अमेरिका की कोर्ट ने इंडियन लॉ को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया या फिर उसने उसको माना ही नहीं और उनको डाइवोर्स दे दिया, तो क्या वो डाइवोर्स डिक्री इंडिया की कोर्ट्स के ऊपर एस जुडिकाटा अप्लाई करेगी या नहीं, या फिर क्या वो इंडिया की कोर्ट्स उसको मान्य करेंगी या नहीं करेंगी? तो अगर इंडिया के किसी भी लॉ को रिकॉग्नाइज करने से रिफ्यूज करती है कोई कोर्ट और उसके रिफ्यूजल में अगर वो जजमेंट दी जाती है तो वो भी कंक्लूसिव नहीं मानी जाएगी, ठीक है। सो वो इट विल नॉट बी अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द जजमेंट। या फिर अगर इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ के थ्रू भी अगर वो जजमेंट दी गई है तब भी वो कंक्लूसिव नहीं होगी। वेयर द प्रोसीडिंग्स इन विच द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड आर ओपोज्ड टू नेचुरल जस्टिस, किसी पार्टी को हियरिंग ही नहीं दी या फिर खुद जो बंदा जिसके खिलाफ केस चल रहा था वो खुद उसमें जज बन के बैठा है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी अगर फॉलो नहीं हुआ तब भी वो कंक्लूसिव नहीं मानी जाएगी फॉरेन कोर्ट की जजमेंट। वेयर इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, या फिर फ्रॉड से ऑब्टेन की है वो जजमेंट तब भी कंक्लूसिव नहीं होगी। वेयर इट सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ लॉ इन फोर्स इन इंडिया, या फिर किसी इंडियन लॉ की को ब्रीच करके वो क्लेम उस ब्रीच के ऊपर ही वो क्लेम बेस्ड हो, तब भी फॉरेन कोर्ट की जजमेंट मान्य नहीं होगी। फाइन। सो ये 5-6 ग्राउंड्स हैं जिनमें फॉरेन कोर्ट की जो जजमेंट है वो कंक्लूसिव नहीं होगी। अदरवाइज जनरल रूल क्या कहता है? दैट द फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर देयरबाय डायरेक्टली एडजुडिकेटेड बिटवीन दी सेम पार्टीज, ठीक है। जनरल रूल यही है कि रेस जुडिकाटा फॉरेन जजमेंट्स के ऊपर भी अप्लाई करेगा, लेकिन कब नहीं करेगा? जब फॉरेन जजमेंट कॉम्पिटेंट ही नहीं थी, या फिर मेरिट्स पे नहीं डिसाइड किया केस, या फिर इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ था, या फिर इट वॉज ऑन द रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज इंडियन लॉ था, या फिर अपोज टू नेचुरल जस्टिस है, या फिर ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड है, या फिर इन ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया है। फाइन। सो इन 6 ग्राउंड्स के ऊपर अगर कोई डिसीजन बेस्ड है तो वो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं मानी जाएगी। ये सारे के सारे ग्राउंड्स आप जरूर एक बार याद करने की कोशिश करो। कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, मेरिट्स ऑफ द केस, इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज इंडियन लॉ, opposed to natural justice, obtained by fraud और in breach of force in India। सिर्फ एक बार 2-4 बार लगातार पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा ये याद होना शुरू हो जाएगा। फाइन। सो मेंस में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है क्योंकि एक 5-7 नंबर का तो बन ही सकता है इसमें से क्वेश्चन। अब सेक्शन 14 जो है वो सेक्शन 13 का ही एक एक्सटेंशन है विच प्रोवाइड्स द प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट्स। वैसे तो प्रिजम्पशंस वगैरह इंडियन एविडेंस एक्ट में आते हैं, लेकिन फॉरेन जजमेंट की प्रिजम्पशन का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 14 में ही दिया हुआ है। सो सेक्शन 14 प्रोवाइड्स विद प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। इट सेज द कोर्ट शैल प्रिज्यूम
upon the production of any document purporting to be a certified copy of a foreign judgment. So जब भी कोर्ट के पास कोई फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी आएगी, इट शैल प्रिज्यूम unless the contrary appears on the record, but such presumption may be displaced by proving want of jurisdiction. जब भी कोई फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट के पास आएगी तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगी कि ये कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट की ही जजमेंट है, अनलेस, और ये जो प्रिजम्पशन है वो रिबटेबल है, राइट. सो दूसरी पार्टी ये प्रूव कर सकती है कि जी जिस कोर्ट की जजमेंट ये है उस कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, राइट. सो प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट, जनरल प्रिजम्पशन यही है कि जब भी सर्टिफाइड कॉपी आएगी कोर्ट, इंडियन कोर्ट मान लेगी कि जब फॉरेन जजमेंट की कोई सर्टिफाइड कॉपी है तो वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट की ही है, ठीक है. कॉम्पिटेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं ये. अब ये अगर कोई पार्टी बोलती है कि नहीं कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट की नहीं है और उस वजह से ये कंक्लूसिव नहीं है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप कैसे बोल रहे हो कि ये कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट की कॉपी नहीं है. फाइन. सो सेक्शन 13-14 दोनों ही फॉरेन जजमेंट के बारे में बात करते हैं. So these were the provisions for today's lecture. Now let's solve some of the MCQs from the previous lecture. If you have not revised the content of previous lecture, then please pause for some time and revise the content, that is all the orders. Just have an overlook over the orders of the CPC and also section 1 to section 8 of CPC, and then start this lecture and proceed with the solution of these questions. So the first question is, the Civil Procedure Code 1908 extends to whole of India except the state of Jammu and Kashmir, the state of Nagaland and tribal areas, A and B both, none of the above. So CPC कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है और कहाँ अप्लाई नहीं होता है. Does CPC apply to state of Jammu and Kashmir? Yes. After 2019 amendment, all the acts in India are now applicable to the state of Jammu and Kashmir also. Then where the CPC does not apply, ऐसी कौन सी जगह है इंडिया में जहाँ पे CPC अप्लाई नहीं करता है? The state of Nagaland and tribal areas. The answer is option B. CPC के अलावा CRPC भी स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज के ऊपर अप्लाई नहीं करता है, ठीक है. ये दोनों ही प्रोसीजरल लॉज जो है नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं करते हैं. इसके अलावा बाकी सारे एक्ट्स में स्पेसिफाइड कहीं पे भी नहीं है कि नागालैंड पे अप्लाई नहीं करेंगे, सारे एक्ट्स अप्लाई करते हैं. लेकिन CPC और CRPC दोनों में ही आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक बहुत ही पेक्यूलियर काइंड ऑफ फीचर है, तो इसलिए इससे क्वेश्चन बनना लाजमी है. Then the next question is, which of the following sections of the CPC defines mean profits? CPC में किस सेक्शन में मीन प्रॉफिट्स डिफाइंड हैं? ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 4, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 14, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 6, ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 12. सो कहाँ पे मीन प्रॉफिट्स डिफाइंड हैं CPC में? Mean profits are defined under section 2 clause 12. इसको याद करने का एक तरीका ये भी है मीन प्रॉफिट्स को, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में सेक्शन भी पूछ लिया जाता है. तो मीन प्रॉफिट्स में जो है मीन एक शब्द है, मीन और क्या है? मीन एक राशि भी होती है, राइट. और मीन राशि जो है वो कौन से नंबर पे आती है? मीन राशि जो है वो 12th राशि है. सो टोटल 12 ही राशियां होती हैं और 12वें नंबर पे कौन सी राशि है? मीन.
सो मीन राशि 12वीं राशि है और 2/12 में ही क्या है, मीन प्रॉफिट। इसके अलावा 2/4 में क्या है, क्या डिफाइन किया हुआ है 2/4 में? 2/2 में क्या है, डिक्री। 2/3 में क्या है, डिक्री होल्डर। 2/4 में क्या है, डिस्ट्रिक्ट। सो ये अल्फाबेटिकली ही हैं सारे। 2/14 में क्या है, 2/14 भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ऑर्डर। 2/6 में क्या है, फॉरेन जजमेंट। फॉरेन कोर्ट कहाँ है, 5 में। फाइन। सो 2/12 में क्या है, मीन प्रॉफिट्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जजमेंट डेटर मीन्स बोरोवर ऑफ अ बैंक, डिफेंडेंट, person against whom a decree is passed, none of the above. So judgment debtor means a person against whom a decree is passed, जिसके against decree pass की गई है वो judgment debtor है। Legal representative under section 2 clause 11 of CPC means a person who is a relative of parties to the suit, co-sharer of the profit assuming to the parties to the suit, who in law represents the estate of the deceased, or none of the above. So legal representative under section 2 clause 11 is the person who in law represents the estate of the deceased, जो law में deceased के estate को represent करता है, वो उसका legal representative माना जाएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन कहाँ है, 211 में। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रिकॉग्नाइजेस प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल और ऑल ऑफ दी अबव। सो सीपीसी में कितनी तरह की, कौन सी तरह की डिक्रीज हो सकती हैं? प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल भी हो सकती है। सो सारी की सारी तरह की डिक्रीज, चारों तरह की डिक्रीज जो है वो सीपीसी में हो सकती है। एज पर सेक्शन 212 ऑफ सीपीसी, मीन प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी आर प्रॉफिट्स रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन अनलॉफुल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, wrongful possession of property, lawful possession of property, effective possession of property. So mean profits जो है वो कौन रिसीव करता है? पर्सन इन wrongful possession of property। ये जो wrongful possession टर्म है इसको याद कर लीजिए बहुत ही ध्यान से। ये मेन कीवर्ड है मीन प्रॉफिट का। मीन प्रॉफिट जो है वो wrongful possession से ही अराइज होते हैं। अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिक्री? इनमें से कौन सी डिक्री नहीं है? डिसमिसल ऑफ सूट इन डिफॉल्ट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, dismissal of suit in default and rejection of plaint both or none. So CPC में क्या डिक्री नहीं है? Dismissal of suit in default is not a decree. So specified है सेक्शन 2 क्लोज 2 में ही कि दो चीज़ें तो ऐसी हैं, दो डिक्री ऐसी हैं जो डीम्ड डिक्री माने जाएंगे, दो ऑर्डर्स ऐसे जो डीम्ड डिक्री माने जाएंगे और दो ऑर्डर्स ऐसे हैं जो डिक्री नहीं होंगे। वो स्पेसिफाइड है। तो क्या डिक्री है सेक्शन 2 क्लोज 2 में? डिक्री क्या क्या है? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज अ डीम्ड डिक्री। सेकंड कौन सी डीम्ड डिक्री है? क्वेश्चन ऑफ रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144। ये दोनों डिक्री हैं। और क्या डिक्री नहीं है? डिसमिसल ऑफ सूट इन डिफॉल्ट, ये डिक्री नहीं है। और क्या डिक्री नहीं है? एनी ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज एज एन ऑर्डर फ्रॉम अपील। सो अपीलेबल ऑर्डर्स, जिन ऑर्डर से अपील लाई करती है वो भी डिक्री नहीं है।
So dismissal of suit in default is not a decree, but rejection of plaint is a deemed decree. ठीक है, so rejection of plaint decree है, restitution under section 144 जो क्वेश्चन है वो भी डिक्री में आता है, लेकिन अपीलेबल ऑर्डर और डिसमिसल ऑफ सूट इन डिफॉल्ट डिक्री नहीं है. राजू डाइज लिविंग बिहाइंड अ सन रवि एंड अ मैरिड डॉटर कविता. A suit is filed by Raju under his death can be continued by. So राजू के जो हैं दो बच्चे थे, रवि और एक मैरिड डॉटर कविता. राजू की डेथ के बाद वो सूट कौन कंटिन्यू कर सकता है? रवि अलोन एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कविता अलोन एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, रवि कविता एंड हर हस्बैंड एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, रवि एंड कविता बोथ एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव. सो सीपीसी जो है वो किसी तरह का कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है. रवि के दोनों ही बच्चे जो हैं वो उसके एस्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे उसकी डेथ के बाद. सो दोनों ही बच्चे जो है, बेशक से जो डॉटर है वो मैरिड है, फिर भी शी इज़ अ legal representative only. Fine, so that suit can be continued by Ravi and Kavita both as legal representative. Profit received during wrongful possession over a property is casual profit, actual profit, conditional profit और mean profit. So wrongful possession से जो भी profit receive होते हैं उनको क्या बोलते हैं? Mean profit. Under which one of the following sections of CPC is subordinate to which of the following? Hierarchy of court CPC में क्या है? हाई कोर्ट ओनली, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओनली. सो CPC में जो है, this question has not been framed properly, so let's proceed with the next question. Maybe it wanted to say under which section of CPC subordination of which courts is given. So section 3 of CPC talks about subordination of courts, according to which every civil court in the state shall be subordinate to district court and high court. The courts of small causes under section 3 of the CPC is subordinate to which of the following? Small causes court जो है वो किसके subordinate है? High court only, district court only, neither A nor B, both A and B. So as per section 3 of the CPC, which talks about subordination of courts, it says that small causes court shall be subordinate to high court and district court. So दोनों ही courts के subordinate है, high court and district court. So the answer is option D. The decrees or orders made by small causes court are revisable by whom? कौन रिवाइज कर सकता है स्मॉल कॉजेस कोर्ट की डिक्रीज को? बिकॉज द स्मॉल कॉजेस कोर्ट इज सो एनी डिक्री ऑफ द स्मॉल कॉजेस कोर्ट इज रिवाइजेबल बाय बोथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट. फाइन, सो स्मॉल कॉजेस कोर्ट की डिक्री को जो है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों ही रिवाइज कर सकते हैं. द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2002 केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट? 2002 में जो है CPC में अमेंडमेंट्स हुए थे मेजर, वो किस दिन से जो है इट केम इनटू फोर्स, एंड फोर्स कब से हुए हैं वो? 1 जुलाई 2002, 1 अप्रैल 2002, 1 जैन 2002 या 1 जून 2002? देखो ऐसे जो डेट वगैरह वाले क्वेश्चंस, स्पेशली जो मेजर अमेंडमेंट्स होते हैं वो कब एनफोर्स हुए, वो जो डेट्स हैं वो कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं. तो जो मेजर अमेंडमेंट्स की हैं उनकी आप थोड़ी सी एक बार जब बेरेक पढ़ते हो तो जो फुट नोट्स में उनके जो भी डेट दी होती है एनफोर्समेंट की, वो भी एक बार आप थोड़ा सा देख लेंगे तो भी आपको वो याद रहेगा. सो 2002 का जो अमेंडमेंट एक्ट था वो 1 जुलाई 2002 को एनफोर्स हुआ था. फाइन, सो द आंसर इज ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2002. ये एक मेजर अमेंडमेंट था CPC में. फॉरेन कोर्ट अंडर सेक्शन 2 क्लोज 5 मीन्स, फॉरेन कोर्ट का क्या मतलब है? अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया and not established under the authority of India, a court situated in India applying foreign law or all of the above. Foreign court का क्या मतलब है?
फॉरेन कोर्ट में दो चीज़ें ज़रूरी हैं, पहला इट शुड बी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, सेकेंडली इट शुड नॉट हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो अगर कोई कोर्ट इंडिया से बाहर भी है लेकिन अगर वो इंडियन गवर्नमेंट ने ही एस्टेब्लिश की हुई है तो वो फॉरेन कोर्ट नहीं मानी जाएगी। फॉरेन कोर्ट होने के लिए दोनों कंडीशन ज़रूरी हैं, पहला ये कि वो इंडिया से बाहर सिचुएटेड हो, दूसरा ये कि वो इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी से एस्टेब्लिश नहीं हो। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Who amongst the following is not a public officer within the meaning of section 217 of CPC? A judge, sarpanch of a gram panchayat, a person in service getting pay from government, none of the above. So who is not a public officer under section 217 of the CPC? A judge is a public officer under CPC. Also, even a person who is getting paid by the government for his services is also a public servant or public officer, but a sarpanch of a gram panchayat is not a public officer. Under section 2 clause 9 of CPC, judgment means decree, order, statement on grounds of a decree or order, decree and order. जजमेंट का क्या मतलब है? सेक्शन 2(9) में जो है जजमेंट की डेफिनेशन दी हुई है। जजमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। सो डिक्री या ऑर्डर किस ग्राउंड पे दी गई है उसकी स्टेटमेंट ही जो है वो जजमेंट है। फाइन। सो डिक्री या ऑर्डर में बस डिक्री या ऑर्डर तो 2-4 लाइन की भी हो सकती हैं कि एग्जैक्टली किसके फेवर में ये डिसीजन है, लेकिन किस ग्राउंड पे वो ऑर्डर या डिक्री दी गई है उसकी स्टेटमेंट देना भी ज़रूरी है। उस स्टेटमेंट को ही जजमेंट बोलते हैं। सो डिक्री और ऑर्डर दोनों के केस में ही जजमेंट हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीपीसी डिफाइंस एन ऑर्डर? ऑर्डर के कहाँ पे डिफाइंड है सीपीसी में? सेक्शन 2 क्लोज 2, सेक्शन 2 क्लोज 9, सेक्शन 2 क्लोज 14 और सेक्शन 2 क्लोज 15। ऑर्डर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 14 ऑफ CPC। 2 क्लोज 2 में क्या है? डिक्री। 2 क्लोज 9 में क्या है? जजमेंट। 2 क्लोज 14 में क्या है? ऑर्डर। 2 क्लोज 15 में क्या है? प्लीडर। Mean profits as defined under section 2 clause 12 of CPC means those profits which the person in wrongful possession of such property actually received or might have received together with interest. Property actually received including profits due to improvements made by such person. Such property actually received or might have received but without any interest on such profits. Such property actually received. So mean profits का मतलब क्या है सेक्शन 2 क्लोज 12 में? Mean profits means those profits which the person in wrongful possession of the property has actually received or might have received, या तो उसने एक्चुअल में रिसीव किए हैं या फिर he might have received, वो रिसीव कर सकता था, and together with द इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट भी लगाना है उस पर्टिकुलर प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, सो तीनों ही चीज़ें हो सकती हैं रॉन्गफुल पोजेशन में। तीनों क्या है? एक्चुअली रिसीव्ड, माइट हैव रिसीव्ड प्लस इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ जो है वो मीन प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए जाएंगे। और क्या मीन प्रॉफिट नहीं है? जो उसने इम्प्रूवमेंट करके कमाया है। ठीक है, सो जो प्रॉफिट उसको इम्प्रूवमेंट करके मिले हैं वो मीन प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। ये टर्म याद रखो कि इम्प्रूवमेंट से जो भी प्रॉफिट उसने कमाया वो मीन प्रॉफिट में नहीं आएगा। ऑर्डर 15 ऑफ CPC टॉक्स अबाउट disposal of suit at first hearing, settlement of issues, attendance of issues, notices. Disposal of suit at first hearing. Order 15 में क्या है? Disposal of suit at first hearing. पहली hearing पे ही कब कोर्ट सूट को डिस्पोज ऑफ कर सकती है। 14 में क्या था? सेटलमेंट ऑफ इश्यूज।
ठीक है। इशू सेटल करने के बाद पहली चीज कोर्ट क्या करेगी, इट विल प्रोसीड विद द ट्रायल। और अगर कोर्ट को लगता है कि पहली हियरिंग 14 के बाद पहली हियरिंग ही होगी कोर्ट की सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के बाद, और अगर कोर्ट को लगता है कि पहली हियरिंग पे ही कि देयर इज नो नीड टू प्रोसीड विद द सूट, देन इट कैन डिस्पोज द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग इटसेल्फ। सो ऑर्डर 15 टॉक्स अबाउट डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग। Which one of the following provision of CPC is related to affidavit? Order 17, Order 19, Order 26 और Order 39। CPC में किस प्रोविजन में एफिडेविट दिया हुआ है? एफिडेविट के देते ही तो कोर्ट सीधा जजमेंट ही दे देगी, राइट? क्योंकि एफिडेविट तो एक तरह से जो है टेस्टिमनी ही होगी लोगों की, ठीक है। उसके बाद कोर्ट के पास सारे के सारे एविडेंसेस आ जाते हैं, उसके बाद सीधा जजमेंट या डिक्री ही आ जाएगी। फाइन। सो जजमेंट या डिक्री कहाँ पे है? ऑर्डर 20 में। तो एफिडेविट कहाँ पे होगा? ऑर्डर 19। फाइन। सो ऑर्डर 20 आप एक ध्यान रखो, जजमेंट और डिक्री। ऑर्डर 21 तो आपको वैसे भी याद हो ही जाना चाहिए। ऑर्डर 21 क्या है? एग्जीक्यूशन। और 20 से जस्ट पहले क्या है? एफिडेविट। एफिडेविट देते ही जजमेंट आ ही जाएगी, ठीक है। ऑर्डर 17 क्या है बताओ? ऑर्डर 17 इट इज एडजर्नमेंट्स। ऑर्डर 9 इज एफिडेविट। ऑर्डर 26 इज, याद करो 26 में क्या है? ऑर्डर 26 और सेक्शन 25 दोनों में क्या है? कमीशंस। ऑर्डर 39 में क्या है? टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर 39 तो वैसे भी आप लोगों को बहुत बार पढ़ना ही पड़ेगा, तो आपको वैसे भी याद हो ही जाएगा। लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ सीपीसी इज, सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा सीपीसी में? ऑर्डर 19, ऑर्डर 21, ऑर्डर 41, ऑर्डर 45। सो द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ सीपीसी इज ऑर्डर 21, जिसमें कितने रूल्स हैं? कितने रूल्स हैं ऑर्डर 21 में? 106 रूल्स हैं। तो सबसे बड़ा ऑर्डर जो है सीपीसी का ऑर्डर 21 है, एग्जीक्यूशन का। ऑर्डर 23 ऑफ सीपीसी अप्लाइज टू द फॉलोइंग। 23 कहाँ अप्लाई करता है? विड्रॉल ऑफ सूट, अपील्स, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑर्डर 23 ऑफ सीपीसी अप्लाइज टू विड्रॉल ऑफ सूट। सो ऑर्डर 23 में बेसिकली विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स है। एडजस्टमेंट कहाँ हुई थी? शादी के बाद, मैरिज, डेथ मैरिज, इंसॉल्वेंसी, ये कहाँ पे है फिर? और डेथ जो है वो कैसे हुई थी? एग्जीक्यूशन से। एग्जीक्यूशन कहाँ था? ऑर्डर 21। डेथ मैरिज इंसॉल्वेंसी कहाँ हुई? 22। मैरिज के बाद क्या हुआ? एडजस्टमेंट। विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट कहाँ है? 23 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी इज रिलेटेड टू इशूइंग ऑफ कमीशन? किस ऑर्डर में है कमीशन? ऑर्डर 24, ऑर्डर 26, ऑर्डर 25, ऑर्डर 27। सो कमीशंस का जो प्रोविजन है वो सीपीसी में कहाँ है? ऑर्डर 26। और किस सेक्शन में है कमीशन? 75 सेक्शन, ऑर्डर 26। Where the provisions related to cases of indigent person given under the CPC. CPC में indigent person के केसेस कहाँ दिए हुए हैं? indigent person के रिलेटेड कौन सा ऑर्डर है? ऑर्डर 33, ऑर्डर 32, ऑर्डर 55, ऑर्डर 89। सॉरी, सेक्शन 55, सेक्शन 89 कि कहाँ पे है इंडिजेंट पर्सन्स का प्रोविजन? सो इंडिजेंट पर्सन के मेनली दो ही प्रोविजंस हैं, एक ऑर्डर 33 है, एक ऑर्डर 44 है।
44 में अपील है, ऑर्डर 33 में जनरल प्रोविजंस है विद रिगार्ड टू इंडिजेंट पर्सन्स। फाइन, सो बेचारे के पास, जिसके पास 3 रोटियां हैं वो 3 ही खा लेता है, उसके पास उसके अलावा कुछ है नहीं। 4 है तो 4 ही खा लेता है, उसके अलावा कोई और पैसा है ही नहीं कोर्ट फीस वगैरह देने का, तो वो एक इंडिजेंट पर्सन है। फाइन, सो इंडिजेंट पर्सन कौन है? जिसके पास जितना है उतना ही सिर्फ खाने का ही काम चलता है। फाइन, सो ऑर्डर 33। Rules relating to interpleader suit have been provided in CPC under which of the following orders? Interpleader suit कहाँ है? Order 50, Order 35, Order 55, Order 40। किस order में interpleader suit के provisions हैं? Interpleader suit is given under Order 35 of CPC। 35, 3 plus 5 equals to 8, और इंटरप्लीटर सूट का सेक्शन क्या है? 8888। ठीक है, 2 बार 8 आ गया। ये है इंटरप्लीटर सूट का प्रोविजन, और ऑर्डर में कहाँ है? ऑर्डर 35। प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरप्लीटर सूट आर कंटेन्ड इन ऑर्डर 34 सेक्शन 88, ऑर्डर 35 बोथ बी एंड सी। सो इंटरप्लीटर सूट के प्रोविजन सीपीसी में कहाँ है? सेक्शन 88 में भी है और ऑर्डर 35 में भी है। सो बोथ बी एंड सी। द प्रोविजंस रिगार्डिंग फ्रेंडली सूट्स आर गिवन इन सेक्शन 90 ऑर्डर 36 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 88 ऑर्डर 35 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर 34 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर 33 ऑफ सीपीसी। सो फ्रेंडली सूट्स के जो प्रोविजंस है सीपीसी में वो कहाँ पे हैं? सेक्शन 90 एंड ऑर्डर 36 के जो प्रोविजंस हैं वो किससे डील करते हैं? फ्रेंडली सूट से। 36 ऑर्डर 36 इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑर्डर। ऑर्डर 36 जो है वो किससे डील करता है? फ्रेंडली सूट से। 36 एक मुहावरे से भी रिलेटेड है जिसको हम बोलते हैं 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा जो मुहावरा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है दुश्मनी के कॉन्टेक्स्ट में। जिन लोगों की बिल्कुल भी आपस में ना बनती हो उनको हम बोलते हैं कि इनका तो 36 का आंकड़ा है। ठीक है, तो दुश्मनी का उल्टा क्या है? फ्रेंड्स, राइट। सो फ्रेंडली सूट कहाँ है? 36 में, राइट। सो इन्होंने क्या कहा कि हमारा कोई 36 का आंकड़ा नहीं है, हम तो फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंडली सूट कहाँ है? 36 में। 36 का आंकड़ा फ्रेंडली सूट। देखो कोई एनिमी सूट्स जैसी तो कोई टर्म है ही नहीं सीपीसी में, तो 36 जो है वो हम 36 का आंकड़ा किस कॉन्टेक्स्ट में याद करेंगे? फ्रेंडली सूट्स के कॉन्टेक्स्ट में। एंड 3 + 6 इज 9, राइट। सो 9090 सेक्शन 90 ऑल्सो डील्स विद फ्रेंडली सूट्स। 36 का आंकड़ा 3 + 6 = 9090 हो गया, और सेक्शन 90 भी फ्रेंडली सूट्स के बारे में बात करता है। सो फ्रेंडली सूट्स में बेसिकली होता क्या है कि दोनों लोगों के बीच में कोई सच किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो सिर्फ कोर्ट के पास इसलिए आते हैं कि जी हमारा ये इशू आपके हाथ में, आप डिसाइड कर दो। हमारे कोई किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो अधिकार है या हमारा रिस्पेक्टिव राइट्स है वो आप डिसाइड करो। फाइन, सो फ्रेंडली सूट्स 36 के आंकड़े में है, इनका कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। द प्रोविजन रिगार्डिंग समरी सूट्स आर गिवन अंडर ऑर्डर 32, ऑर्डर 37, ऑर्डर 28, ऑर्डर 30 ऑफ सीपीसी। समरी सूट्स कहाँ है? समरी सूट्स, समरी 37 सेम साउंड करते हैं। समरी सूट कहाँ है? 37 में। अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीपीसी अटैचमेंट बिफोर जजमेंट इज प्रोवाइडेड। कहाँ पे अटैचमेंट बिफोर जजमेंट है सीपीसी में? ऑर्डर 29 रूल 1-2, ऑर्डर 40 रूल वॉट एवर, दिस इज नॉट कंप्लीट, मे बी 1-2, ऑर्डर 96, ऑर्डर 36 रूल्स 5-13। सो अटैचमेंट बिफोर जजमेंट कहाँ पे दिया हुआ है सीपीसी में? अटैचमेंट
अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। नॉर्मली अरेस्ट या अटैचमेंट जजमेंट के बाद ही होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है जहाँ पे अरेस्ट या अटैचमेंट जजमेंट से पहले भी हो सकते हैं। ये अरेस्ट या अटैचमेंट बिफोर जजमेंट के प्रोविजन कहाँ दिए हुए हैं सीपीसी में? ऑर्डर 38 को क्या बोलते हैं? 38 में क्या है? अरेस्ट एंड अटैचमेंट। ठीक है, सो 38 से अरेस्ट अटैचमेंट, 38 अरेस्ट अटैचमेंट, 37 में समरी प्रोसीजर। ऑर्डर 39 रूल 2 ऑफ सीपीसी डील्स विद अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, टेम्पररी इंजंक्शन, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ऑर्डर 39 जो है डील करता है टेम्पररी इंजंक्शन से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर इज मेंशन्ड। रिसीवर कहाँ पे अपॉइंट किया जाता है? किस ऑर्डर में है रिसीवर का प्रोविजन सीपीसी में? ऑर्डर 9, ऑर्डर 40। देखो एल जो साइन है ना ये 50 है। हालांकि स्कूल टाइम में हम लोगों ने सबने ही पढ़ा होगा, लेकिन बाद में आगे जितना जाते जाते हैं तो हम ये चीज़ों को रिवाइज नहीं करते। तो बहुत सारे ऐसे भी आप लोगों में से होंगे जिनको नहीं भी पता हो कि एल का जो साइन है वो 50 को रिप्रेजेंट करता है, और इससे पीछे अगर कोई साइन लगा दिया तो वो माइनस हो जाएगा। एक्स जो है वो 10 का साइन होता है, तो अगर इससे पीछे एल के पीछे अगर एक्स लग गया तो ये 50 माइनस 10 मतलब 40 बन जाएगा। और अगर एल के आगे एक्स लग गया, फॉर एग्जांपल जैसे 5 है, 5 से पीछे 1 लगा दिया तो ये माइनस हो जाएगा, 5 में से 4 है, और अगर 5 के आगे 1 लगा दिया तो ये प्लस हो जाता है, ये है 6। ठीक है, तो सिमिलरली एल का जो साइन है वो 50 को रिप्रेजेंट करता है, और अगर उससे पीछे x लगा दिया तो मतलब हमें माइनस करना है 50 में से 10, तो ये ऑर्डर बन गया 40। फाइन, सो ये भी थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि कई बार एग्जाम में हो सकता है इसी फॉर्म में ही नंबर्स आ जाएं। फाइन, सो ऑर्डर 9, ऑर्डर 40, ऑर्डर 10, ऑर्डर 13 किस ऑर्डर में रिसीवर का प्रोविजन है? सो ऑर्डर 40 ऑफ सीपीसी टॉक्स अबाउट the provision of receiver. Pauper appeals have been provided under, pauper क्या है? Indigent person. Appeals by indigent person कहाँ है? Order 42, order 40, yes, order 42, order 43, order ये क्या बन गया? ऑर्डर 54 या ऑर्डर 45। सो इंडिजेंट पर्सन्स की अपील का प्रोविजन कहाँ पे है सीपीसी में? सो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक मिस्टेक है, XLIV होना चाहिए, मतलब ये हो गया 40 और 44 को जो है कैसे लिखा जाएगा? XLVI। ठीक है, सो इस फॉर्म में ऑर्डर 44 को लिखा जाएगा। सो इन पॉपर अपील्स का जो प्रोविजन है वो कहाँ है? XLIV में, सॉरी ये हो गया 46 और IV ये 4 है और ये है 44। फाइन, सो पॉपर अपील का जो प्रोविजन है वो सीपीसी में कहाँ दिया हुआ है? ऑर्डर 44 में। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना। पॉपर सूट कहाँ है? 33 में। ठीक है, तो 33 एंड 44 दोनों ही इंडिजेंट पर्सन की बात करते हैं। 33 बात करता है सूट्स बाय पॉपर एंड 44 बात करता है अपील्स बाय पॉपर या इंडिजेंट पर्सन। So this is it for today's lecture. Please keep studying and keep revising all the matter that we have discussed in this class. Thank you.